Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Virgo Ascendant and how the month of August 22 is going to pan out for the Virgo Ascendant people. Virgo Ascendant is ruled by Mercury, so let us first start by looking at where Mercury is transitioning. The Ascendant Lord is transitioning through the 12th house of foreign elements expenditure and losses and charity. Mercury also happens to be the 10th house lord for Virgo ascendant people, and as a result, they will see a lot of opportunities to travel to a foreign or an alien place in the month of August. This travel to foreign countries could be related to work, and if you look closely, the 12th house Lord Sun is also transitioning through the 11th house, which would also mean that if they visit some foreign country for the work related purpose, they will also be able to draw some gains via this visit. Whenever the ascendant lord transitions to the 12th house, the person starts to feel alone and isolated. This is also the time to self reflect and figure out a way forward. So, if the Virgo ascendant people want a smooth ride in the month of August, they should focus on utilizing the negative energy of this 12th house in the positive direction. So, they can get themselves involved in a charitable work, devote some time serving the ill people in hospital, and if not able to spend time, then they should donate some money to hospital. The best way to utilize the 12th house is to have a connection with foreigners or alien places. So if you are employed in a MNC, or if you happen to locate in some foreign country at the moment, then this transit will be very fruitful for you. You can also see visit to a foreign country in the month of August as far as your work is concerned. Now let us also look at the Saturn. Saturn is the lord of 5th and 6th house for the Virgo ascendant people and is friends with the ascendant lord Mercury. 6th lord Saturn is passing through the 5th house and both of them are owned by Saturn. If you look effectively, the job will not be a great place to be in the month of August, especially for the first 16 days when there is going to be an opposition of Sun and Saturn. So people who are in jobs will face difficulties from people who are sitting at the top of the hierarchy in their companies. So one should avoid getting into any kind of a tangle or argument with their superiors, at least for the first 16 days of August till the time this opposition is going to take place. After this, that is in the second half of the month, things will start to improve for people who are in their jobs. The best time for service or job would be 5th to 6th of August. If you have a business or if you are planning to start a new business, then this is an excellent time because the 7th Lord Jupiter is transitioning through the 7th house itself, and therefore people who are in business will continue to flourish in the month of August, and you can also think of starting your own business during this time frame. We also see certain other things from 5th house, which include speculation and studies, because 5th house also indicates education and creativity of a person. So if you are interested in making money through the stock market, again because of this Saturn Sun opposition, you should stay away from the market at least in the first half of the month till 16th of August. The best time to remain in the market will be between 19th to 21st of August. This also happens to be the time if you are planning to ask someone out or to propose someone, then again 19th to 21st of August is a good time. Students will also see the second half of the month to be better. Again, the same Sun Saturn opposition, but the second half will definitely be better for them. Rahu is going to continue to move through the 8th house. What it would mean is there are going to be conflicts with the family of spouse or frustrations with the speech of the spouse, because the 8th house indicates the speech of your spouse and it also includes the family member of their spouse. So such kind of a conflicts are bound to take place in the month of August. Also, the second house lord Venus is transitioning through the 11th house, so it means that you will be able to generate some kind of a gain in monetary terms from your immediate family members. Now, there are also certain dates when you need to be cautious in a month. These are the dates when moon passes through your 6th, 8th, and 12th house. So, the dates for Virgo ascendant people in the month of August will be the beginning of the month, 1st and 2nd of August, 9th to 10th of August, 24th to 25th of August, and 31st of August. So, in total, 7 days
1st, 2nd, 9th, 10th, 24th, 25th, and 31st of August. So, barring these 7 days, the month of August is going to be quite action oriented for Virgo ascendant people if they are able to utilize the negative energies of this 12th house by visiting a foreign place or getting themselves engaged in a charity or hospital, then this month will turn out to be pretty good for them. So this is overall summary for the Virgo ascendant people. If you have liked my video, please do subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कन्या लग्न वालों के लिए अगस्त 2022 का महीना कैसे साबित होगा। देखिए, कन्या लग्न का मालिक बुध होता है और बुध अभी 12वें भाव से भ्रमण कर रहा है अगस्त के महीने में कन्या लग्न वालों के लिए। बुध यहाँ पे दशमेश भी बनता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। जब भी लग्नेश 12वें भाव से निकलता है तब व्यक्ति को अकेलापन महसूस होता है, उसे लगता है कि उसे कोई सपोर्ट नहीं करता है, मन में निराशाजनक ख्याल आते हैं। और ये हमेशा ही जब भी आपका लग्न स्वामी 12वें भाव से निकलेगा तब इस तरह की स्थिति बनती है। अगर बहुत बड़े मूवमेंट वाले प्लैनेट्स होते हैं जैसे शनि गुरु वगैरह तो यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है। नहीं तो जब भी छोटे ग्रह निकलते हैं तो थोड़ा समय के लिए कठिनाई होती है। अभी चूंकि दशमेश भी 12वें भाव से ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने काम से रिलेटेड चीज़ों में, अगर आप फॉरेनर्स के साथ डील करते हैं, किसी एमएनसी में कार्यरत हैं या आपका कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वगैरह बिजनेस है, कहीं पर भी आपका फॉरेनर्स के साथ कनेक्शन आता है तो ये अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा साबित होगा। जो लोग फॉरेन जाने का प्रयत्न कर रहे हैं वो भी इस महीने में कोशिश कर सकते हैं, उनको मौका मिलने की पूरी संभावना है क्योंकि लग्नेश और कर्मेश दोनों ही 12वां भाव से गुजर रहे हैं, एक ही ग्रह है बुध। तो इस तरह के मौके आपको अपने कार्यस्थल पर मिल सकते हैं बाहर घूमने के लिए। इस सिचुएशन से डील करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप चैरिटी कीजिए, दान पुण्य कीजिए, क्योंकि वो भी 12वें भाव से देखा जाता है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कीजिए इस समय में, तो भी आपके लिए लाभकारी रहेंगे। या फॉरेन विजिट तो हमेशा ही अच्छी रहती है, इससे आपको 12वें भाव से रिलेटेड एनर्जीज को खर्चा करने में मदद मिलती है। नहीं तो फिर व्यक्ति का स्वयं पे खर्चा होता है, हॉस्पिटल की विजिट हो जाती है या व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो हमें किसी भी तरह से ये नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करना आना चाहिए, जो कि आपको ज्योतिष्य के थ्रू करने में मदद मिलती है। नज़र बाकी ग्रहों पर भी डालते हैं। यहाँ पर शनि छठे और पांचवें दोनों भावों का स्वामी बनता है कन्या लग्न के लिए और अभी ये पांचवें भाव से भ्रमण कर रहा है। देखिए, पहले 16 दिन अगस्त के पांचवें भाव से जुड़ी हुई चीजों के लिए मुश्किल है क्योंकि शनि और सूर्य की आपस में प्रतियुति यानी ऑपोजिशन हो रहा है। तो सूर्य और शनि आपस में कट्टर दुश्मन हैं, बाप बेटे की तरह हैं। तो व्यक्ति के जहां पर भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। यानी अगर आप सर्विस में हैं तो छठवें भाव का स्वामी पांचवें से गुजर रहा है, ऊपर से सूर्य के साथ प्रतियुति करना, यानी आपके अपने सुपीरियर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। सूर्य आपके पिता को भी दिखाता है और आपके कंपनी में ऊपर के लेवल पे बैठे हुए लोगों को भी दिखाता है, टॉप के बॉसेस को, लीडर्स को। तो उनके साथ किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िए, नहीं तो आपके लिए समस्या पैदा हो जाएगी। और खास करके पहले 16 दिनों तक तो किसी भी तरह का कोई विवाद मत कीजिए। 16 अगस्त के बाद सूर्य 11वें भाव से निकल के 12वें भाव में चला जाएगा और काफी हद तक इस तरह के टेंशन आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो भी 16 अगस्त के पहले शेयर बाजार से दूर रहिए तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या आप किसी को डेट वगैरह के लिए पूछना चाहते हैं तो 19 से 21 अगस्त का समय बहुत अच्छा है क्योंकि इन दिनों में शुक्र और चंद्र की युति बनेगी। आप स्टूडेंट हैं तो सेकेंड हाफ अगस्त का आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित होगा। फर्स्ट हाफ में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और परिणाम भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। सर्विस के लिहाज से 5 और 6 अगस्त इस महीने के सबसे अच्छे दिन हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि सप्तम के स्वामी गुरु सप्तम भाव से ही भ्रमण कर रहे हैं। अगर आप इस समय में कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं या बहुत समय से सोच रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छा समय है कन्या लग्न वालों के लिए अपना स्वयं का बिजनेस चालू करने का। एक नज़र राहु पे भी मार लेते हैं। देखिए, राहु अष्टम भाव से भ्रमण कर रहे हैं। अष्टम भाव का राहु व्यक्ति के इन लॉज के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, यानी कि ये अष्टम भाव सप्तम भाव से दूसरा होता है। सप्तम भाव से आपके पति या पत्नी देखे जाते हैं और अष्टम भाव से पति या पत्नी का परिवार
और आपके पार्टनर की वाणी देखी जाती है। तो राहु यहाँ पर बैठकर इन दोनों चीजों को खराब करेगा, तो इसका मतलब है आपके अपने ससुराल वालों के साथ झगड़े हो सकते हैं अगस्त के महीने में, या फिर आपके पति या पत्नी की वाणी आपको हर्ट कर सकती है इस महीने में। तो राहु का अष्टम भाव से गुजरना यानी कि व्यक्ति को गुप्त रोग या फिर पाइल्स जैसी बीमारियां भी देके जाता है, इसलिए आपको इस समय अपनी सेहत का ख्याल रखने की भी काफी जरूरत है। अभी महीने में कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए। ये वो दिन है जब चंद्र 6, 8 और 12 से निकलता है। ये दिन कन्या लग्न वालों के लिए अगस्त में है: 1, 2 अगस्त, 9, 10 अगस्त, 24 और 25 अगस्त और 31 अगस्त। कुल मिला के 7 दिन है जब व्यक्तियों को काफी सावधान रहना पड़ेगा और कोई निर्णय नहीं लेना महत्वपूर्ण अगर आप लेना चाहते हैं तो। वैसे भी लग्नेश 12वें से जा रहा है, यानी इस महीने में आपके लिए हुए क्रूशल निर्णय गलत ही साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं की कहूंगा वो ये है कन्या लग्न वालों के लिए कि किसी भी तरह से ये 12वें भाव की नेगेटिव ऊर्जा को इस्तेमाल कर लें तो अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा निकल सकता है। यानी किसी चैरिटी ट्रस्ट के साथ जुड़ जाएं, कुछ दान पुण्य का काम करें, अस्पताल में अपनी सेवाएं दें, और अगर इनमें से कुछ ना हो सके तो फॉरेन विजिट अगर कार्यस्थल पे होती है तो बहुत सी एनर्जीज वैसे ही एड्रेस हो जाएंगी। तो ये आपका समरी है अगस्त के महीने का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।